So we have been trying to do this story from a long time. First, we were waiting for Mahindra to launch its Marazzo, and then we started waiting for the updated Ertiga. And now time has come. Hi friends, this is Kranti Sambhav. Welcome to Times Driver. और आज हम आमने सामने लेकर आ रहे हैं मारुति की Ertiga और Mahindra Marazzo को. Just a coincidence that we got similar colored Marazzo and Ertiga. लेकिन एक फ़र्क बहुत गहरा है इन दोनों में. This is petrol version and this is diesel version. अब आप कहेंगे कि डीजल का मुकाबला पेट्रोल से हम कैसे करेंगे, but thing is that I've driven the diesel Ertiga, लेकिन उसका परफॉर्मेंस हम इससे कंपेयर कर सकते हैं. बाकी जो फीचर्स हैं दोनों में सिमिलर हैं, so that's why we are comparing these two. First thing first, looks. So if you look at these two cars in isolation, both have different kind of personalities. Marazzo ज़्यादा बल्कि SUV टाइप की आपको लगेगी, but Ertiga has more car-like feel now. It is updated, no doubt. It's looking much better than the earlier Ertiga, its predecessor. और उस हिसाब से, especially the headlamp, the projector headlamp and this metal-studded front grille, ये इसको काफ़ी अलग look दे रहे हैं. और this bonnet line which is a little tilted, यहाँ आगे की तरफ जिस तरह के इसका स्लोप है वहाँ कार टाइप की फील आपको ज़्यादा लगेगी. But as I said, this is looking refreshed and much better than the earlier Ertiga. वहीं अगर हम Marazzo की बात करें with this shark teeth kind of front grille design और इसका bulky सा bonnet और साथ में इसका projector headlamp, this is more robust looking, more macho or maybe SUV-ish as far as looks are concerned. तो लुक्स की कहानी के आखिर में हमारा फेवरेट डायलॉग, लुक्स आर सब्जेक्टिव. हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आए या ये ज़्यादा पसंद आए, दैट इज़ अप टू यू. लेकिन डायमेंशन के हिसाब से तो दोनों में फ़र्क काफ़ी है. नाउ विल टॉक अबाउट देयर डायमेंशन. Now we talk about the dimension of these two cars. Marazzo is bigger than Ertiga, and if we talk in figures, this is almost 190 mm longer than the Ertiga. This is around 120 mm wider than Ertiga and around 80 mm taller than Ertiga. लेकिन एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा prominently मुझे दिखती है और बहुत सारे friends हमारे बात कर रहे थे उसके बारे में. That is the difference between these two tires. यहाँ 17 इंच के आपको व्हील्स मिलेंगे, यहाँ पर 15 इंच के. एंड दैट वेज दिस लुक्स मच बिगर और बल्कि ये ज़्यादा आपको नज़र आएगी. And now Marazzo and Ertiga's rear look. यहाँ सबसे पहले जो फ़र्क नज़र आता है वो आपके टेल लैम्प्स में नज़र आता है. दोनों की हाइट आप देख सकते हैं. इसकी टेल लैम्प यहाँ तक जा रही है, इसकी टेल लैम्प नहीं है. बट लुक वाइज आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर देन द काइंड ऑफ फिनिश वी सी इन Marazzo. So as far as looks are concerned, I think Ertiga looks much better. और जब पीछे हैं ही खड़े तो क्यों ना इसके बूट स्पेस को भी चेक कर लें. लेट्स सी. और यहाँ पर मामला काफ़ी कंपेरेबल है. यहाँ पर both the cars have a very similar kind of space. This is more than 200 liters if you don't fold or tumble any of the seats. और लगभग वैसा ही मामला यहाँ भी नज़र आ रहा है. And then we'll check with all these seats folded as well. Front seat Marazzo. क्या कुछ देखने को मिल रहा है? Let's see. यहाँ steering wheel के ऊपर we have lots of controls. You have cruise control on this version and plus you can control all the infotainment system. Screen looks nice. It has that purplish kind of finish and that is looking pretty stylish. बाकी dash, if you look at the finish, again is nice. It's stylish, but material wise, it's not that solid. Overall, you feel higher, feature rich और मटेरियल और फिनिश के हिसाब से इट्स लुकिंग प्रीमियम एज वेल. यहाँ पर आपके फ्रंट कंसोल में ही
गियर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। दिस इज 6 स्पीड ट्रांसमिशन। यहाँ एयर कंडीशन कंट्रोल है यहाँ पर आपको, और वो भी काफ़ी बेसिक्स है। स्विचेस और नॉब्स आपको स्टाइलिश मिलेंगे, स्मार्ट मिलेंगे। अदरवाइज फिनिश के हिसाब से, कलर पैटर्न, लेआउट के हिसाब से आपको ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लगेगी, लेकिन स्मार्ट ज़रूर लगेगी। And this handbrake lever is confusing me a bit because I cannot make up my mind कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा तो इसको मैं खोल पाऊँगा या बंद कर पाऊँगा या नहीं। Otherwise this front seat, driver seat, I think it is giving a very commanding kind of position and वो look। Ertiga का क्या हाल है? Let's see। And now the story from Ertiga's driver's seat। यहाँ पर स्क्रीन प्ले ज़्यादा लंबा नहीं है। If you talk about the features and controls and whatever we're seeing here, वहाँ this is looking more car-like. The height is lower, the dash is lower. This finish, the layout is also not very sporty. This is more on the elegant side. Plastic material is not that great, लेकिन overall जो combination मुझे यहाँ पर लग रहा है वो मुझे स्टाइलिश और फ्रेश लग रहा है। स्पेशली दिस वुडन फिनिश इज़ गिविंग नाइस फील टू इट। यहाँ एयर कंडीशन का जो कंट्रोल है बहुत ही बेसिक सा आपको कॉम्पैक्ट सा भी मिलेगा और बेसिक सा भी मिलेगा, और ये काफ़ी लाइट यहाँ बेज इस पूरे स्ट्रक्चर में नीचे देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर वुडन फिनिश यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्विच है। एंड देन यू कैन कंट्रोल योर स्मार्टफोन्स विद दीज स्विचेस जो स्टीयरिंग व्हील के नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सामान रखने की थोड़ी सी जगह है। वन इंटरेस्टिंग क्लेवर फीचर विच दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इज दिस स्मॉल चिलर जोन फॉर योर cans or small bottles. If your AC is on, then you just open this vent and this keeps your bottle chill. And इसके बाद ये gear shift, handbrake, the way we generally see, and especially after seeing Marazzo's handbrake lever, I think ये काफ़ी आपको plain लगेगा और ज़मीन से आप ज़्यादा नज़दीक नज़र आते हैं Marazzo के मुकाबले। और इसके ड्राइवर सीट की कहानी यही ख़त्म होती है। Now the second row of Marazzo, which is again very spacious and comfortable, और ये लेदरेट की फील के साथ प्रीमियम भी कहीं ज़्यादा आपको लगेगा। यहाँ आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं आगे पीछे, और जगह काफ़ी बन सकती है। अगर तीसरे रो में कोई नहीं बैठा है तब तो काफ़ी जगह बनेगी, लेकिन आर्मरेस्ट भी आपको सॉलिड मिलेगा। थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड, बैक सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है, एंड ओवरऑल फिनिश इज़ वेरी नाइस। इस कंफर्ट में थोड़ा सा कुछ ऐड करता है ये इंटरेस्टिंग AC, जिसे आप डायरेक्ट या डिफ्यूज़ मोड में डाल सकते हैं, जिससे कि हवा अगर आपके सीधे चेहरे पर न लगे, सर पे न लगे, इसके लिए यू हैव दिस डिफ्यूज़ मोड। और इंटरेस्टिंग फीचर ज़रूर है जो इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। Now the story from second row is almost over as far as Marazzo is concerned. तो अब आप दूसरी कतार में हैं। यहाँ हम सेकेंड रो में बैठ गए एर्टिगा के, एंड कंफर्ट के हिसाब से मुझे ये अच्छी लग रही है। फिनिश के हिसाब से द फैब्रिक फिनिश इज़ नॉट गिविंग दैट प्रीमियम लुक what Marazzo has, but cushioning के हिसाब से, बैक सपोर्ट के हिसाब से, and space wise, I think Ertiga is very convenient and comfortable that way. तीसरे पैसेंजर के लिए भी आपको आराम से यहाँ पर जगह मिलेगी। Obviously this is not as wide as Marazzo. AC वेंट्स आपको यहाँ ऊपर मिलेंगे जो थर्ड रो के लिए भी काम करेगा, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉब के ज़रिए। और अगर तीसरा पैसेंजर नहीं है तो यहाँ आप इस आर्मरेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू डाउन विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट जस्ट डज द जॉब। तो बहुत प्रीमियम नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट और कंफर्टेबल मुझे ये जगह लग रही है, स्पेशली 2 लोगों के लिए। And now we'll try and sit in third row of Ertiga. यहाँ this is not a tumbling seat like Marazzo, but आगे slide हो जाती है,
नॉट वेरी कंफर्टेबल एज फार एज सीटिंग इज कंसर्न। अगर मैं एंट्री और एग्जिट की बात करूँ वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, बट दिस इज बेटर देन द प्रेडिसेसर, द अर्लियर वन। और यहाँ जगह की अगर बात करें, थाई सपोर्ट इज़ ओके, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा यहाँ बैठते हैं, पाँव रखने की थोड़ी सी जगह आपको कम रहेगी। बैक सपोर्ट इज़ ओके, अदरवाइज एवरेज इंडियन हाइट के लिए इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल सीट। स्मॉल साइज या स्पेशली बच्चे जो होंगे पैसेंजर, उनके लिए ये साइज़ या जगह है वो मुझे लगता है कि काम चल जाएगा। सो दैट मीन्स इट डज द जॉब। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी जगह या आरामदेह ये मुझे जगह नहीं लग रही है। So now the third row story from Marazzo, और एक लीवर के ज़रिए you can tumble this seat and entry is not that uncomfortable. So entry के हिसाब से better than Ertiga, space and comfort के हिसाब से भी this is better than Ertiga. यहाँ average Indian height के लिए जगह है वो ठीक आपको मिलेगी। तो पाँव थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज मच बेटर देन Ertiga। Driving is Marazzo, and as you know, this is the diesel version anyway, और इसमें बैठते ही personally feel that you driving है। और वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं कर रहा हूँ, मैं इसका वज़न बहुत ज़्यादा फील नहीं करते, काफ़ी लीनियर है और लोअर RPM पर भी मुझे ठीक ठाक पुल दे रही है, कम से कम लीनियर पुल दे रही है, जिससे ये लगता है कि वज़न इसका गाड़ी का कितना है वो आप SUVs में महसूस करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ मच स्मूदर। सस्पेंशन की अगर बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट आपको रहेगी, और फीलिंग मूवर के हिसाब से देखें तो आई थिंक दैट इज वहाँ पिछले रो पर भी लोगों को आराम थोड़ी सी ज़्यादा मिले, सस्पेंशन की ज़रूरत उसमें नहीं होगी। हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो दिस इज गिविंग गुड परफॉर्मेंस एज फार एज स्ट्रेट लाइन इज कंसर्न। मुझे काफ़ी सीधे तरीके से चला रहा हूँ, काफ़ी मज़ेदार तरीके से चल रही है, बट एट कॉर्नर्स यू फील दैट बॉडी रोल ऑफ थोड़ा सा सस्पेंशन जो सॉफ्ट आपको महसूस होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगा। ड्राइव वाइज ऑब्वियसली दिस गिव्स मोर टॉर्क देन Ertiga is engine, और वहाँ से लगभग 100 न्यूटन मीटर ज़्यादा है टॉर्क की अगर बात करें। दैट फुल पावर ऑल्सो गिव्स यू सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप इसे हाईवे पर लेकर जा रहे हैं। तो ड्राइव के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो शहर के अंदर या हमेशा अकेले चलाने वाले, ज़्यादातर अकेले चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए ज़्यादा मज़ेदार ड्राइव तो मुझे Ertiga की लगी, डीजल वर्जन। But when you driving with lots of passengers and for highways and all, I think diesel Marazzo or simply Marazzo is much better performer. Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. Now talk about Ertiga's driving performance. That is not not very impressive. Just does the job. ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही बेसिक चीज़ है आपको देखेंगे। But there is one thing which is the new hard-tech platform. This handles much better. Performance के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार वो ही रहेगी, लेकिन पिछले जो वर्जन है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस हैंडलिंग के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। The petrol version is a very practical kind of version where, as I said, it does the job. वहीं डीजल वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार वर्जन मुझे लगा अगर हम Ertiga की बात करें। So for city driving with less number of people, Ertiga diesel is good, but then these are supposed to be people mover. So that way, I think for city driving, Ertiga does the job. For highway, I think Marazzo gives much more confidence. Even when Marazzo and Ertiga are totally different kind of vehicles as far as price, shape and engine options are concerned, but still they confuse us, and that is the reason we did this story. And then you must be waiting for our verdict, और ये कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो बिंदु विश्राम करती है इस पॉइंट पे, what kind of requirement do you have? If you want
petrol MPV, then you have to go with Ertiga. And if you need diesel MPV and you don't have budget for Marazzo, then Ertiga diesel makes sense, mostly for city driving. Otherwise, Marazzo.